My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing pie chart based DI sets from SRC GBO 2025 examination. Start करते हैं सेशन. If you have not already subscribed to the channel, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में also join the channel Mathological. So first set, there are two sets basically. This is the first set based on pie chart with 5 questions. And after doing this set, we'll be doing second set, which is slightly comparatively moderately difficult. First set तो बहुत ही easy है, with 5 more questions. ठीक है, so pause करके अपने पे solve both these sets and then watch the solutions. The first set, pie chart shows percentage distribution of cakes sold by 5 different cake shops on Christmas Day. Total number of cakes sold by all shops on Wednesday, that is 1600. Total cakes sold on Wednesday is 1600. Percentage of cakes sold by the shops on Wednesday, हमें percentage values given है for A, B, C, D, E 5 shops. First question, how many more cakes did shop B sell on Wednesday than number of cakes sold by shop A on the same day? तो शॉप A ने सेल किए हैं 4%, शॉप B ने सेल किए हैं 20%, तो डिफरेंस कितना है? 16% का डिफरेंस है. एंड 1% इज, क्योंकि 100% हमारा 1600 है, तो 16% विल बी 16 into 16 because 1% is 16. So 256 will be our answer. Option C आंसर हो गया. Straightforward. Second question, if the number of cakes sold by shop A on Tuesday was 20 more than number of cakes sold on Wednesday, तो for shop A and then shop B के लिए भी ऐसा ही स्टोरी है. shop A and shop B Wednesday and Tuesday. तो Wednesday को क्या स्टोरी है शॉप A का? शॉप A सोल्ड 4%, 16 into 4 64 हो जाएगा, और शॉप B है सोल्ड 20%, 20 into 16 that will be 320. और क्वेश्चन कह रहा है कि केक सोल्ड बाय शॉप ए ऑन ट्यूसडे वाज 20 मोर, यानी कि ट्यूसडे को इट विल बी 84 होगा. ठीक है, अब 84 आते ही, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा ए आ रहा है, रेशियो ऑफ केक सोल्ड बाय शॉप ए टू शॉप बी ऑन ट्यूसडे, तो आंसर हमारा या तो ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन सी भी हो सकता है, क्योंकि 4/125 है, बट उतना लार्ज नंबर तो नहीं है डेफिनेटली, तो बी या फिर डी में से कोई एक आंसर होगा. और फिर हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय शॉप बी ऑन ट्यूसडे वाज 62 लेस देन दैट ऑन वेडनेसडे, तो 320 minus 62, so that will be 258. 84 upon 258. 42 upon 129 होता तो आंसर हो जाता, बट वैसे तो आंसर नहीं दिया है, तो क्लियरली आंसर हमारा ऑप्शन डी है, विच इज 14/129. 6 से सिंप्लीफाई करोगे 14/43 आंसर आ जाएगा. 42/129 and 14/43 both could have been the answers. Next question, what is the central angle of the sector corresponding to number of cakes sold by shop D on Christmas Day? So 100% is basically equal to 360 degrees for pie chart, यानी कि 1% is 3.6 degrees. तो क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल फॉर क्रिसमस केक्स सोल्ड बाय शॉप डी. 22% है, तो 22 into 3.6, 20 into 3.6 is 72, so plus 7.2, 79.2 will be our answer. 79.2 degrees आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन 4, shop D sells only 2 types of cakes, chocolate and strawberry. On Christmas Day, shop D sold 12 more chocolate cakes than strawberry cakes. How many chocolate cakes were sold by shop D on that day? तो shop D के टोटल जो केक्स हैं हमारे, कितना सेल हुआ था? 22%, और 1% 16, 22 into 16 हो गया, so that will be 352. 320 plus 32, 352. And shop D sold 12 more chocolate cakes than strawberry, यानी कि 12 को पहले ही हटा दो, तो -12 करोगे 340 आ गया, 340 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो. चॉकलेट स्ट्रॉबेरी 170, 170, और हमें पता है चॉकलेट केक्स 12 ज्यादा सेल हुए हैं, तो +12 चॉकलेट में कर दोगे, चॉकलेट केक्स आ जाएंगे 182 और स्ट्रॉबेरी आ जाएंगे 170. क्वेश्चन ने पूछा है चॉकलेट केक कितने सेल हुए? 182. आंसर विल बी देयर, ऑप्शन बी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, the total number of cakes sold by all the shops together on Wednesday was 60% more than that sold on Tuesday. Cake sold by all shops together on Wednesday was 60% more than that on Tuesday. तो Tuesday को जो नंबर है Wednesday को 60% ज़्यादा था, और Wednesday का नंबर है हमारा 1600. तो दिस इज 1600, जो कि 160% हो गया हमारा Tuesday का, तो Tuesday का नंबर विल बी 1000. और क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय ऑल शॉप्स, दैट इज 1000, ऑप्शन सी. सो बहुत ही इजी सेट था, दिस वाज वेरी डुएबल सेट, बट ये सेट एक्चुअल में एग्जाम में शायद दिस वाज द लास्ट सेट, तो डेफिनेटली वेरी डुएबल सेट, और ये सेट तो एग्जाम में जरूर करना चाहिए था. कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में तुमने स्टार्ट किया, पहले कुछ सेट किए, पहले डिफिकल्ट सेट आ गया और उसको अटेम्प्ट करना चालू कर दिया, और लास्ट वाला सेट जो बहुत ईजी है उसको देखा ही नहीं. तो हमेशा एग्जाम में ये फोकस जरूर करना है कि पहले ऑब्जर्व कर लो कि कौन सा सेट सबसे ईजी है. जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पाई चार्ट है, नेक्स्ट सेट जो आप करेंगे वहाँ पे देयर आर 3 पाई चार्ट, सो डेफिनेटली दिस इज मोर
डिफिकल्ट, मोर चैलेंजिंग देन द फर्स्ट सेट, इजंट इट सो? उतना तो देख के भी समझ में आ रहा है, ऑब्जर्वेशन से भी समझ में आ रहा है, बाकी बहुत डिफिकल्ट ये भी नहीं है, बट डेफिनेटली मोर चैलेंजिंग देन द फर्स्ट वन। ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, इसको देखते हैं। होम अफेयर्स, अ मेजर डीलर इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैज 5 डिविजन्स, वन फॉर ईच आइटम। और डिविजन्स क्या है? टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, म्यूजिक सिस्टम एंड वॉशिंग मशीन। द गिवन पाई चार्ट नंबर 1, so this is pie chart number 1 and it is showing number of consumer durables sold, और वही आइटम हमें number of items sold mentioned है 15, 14, 12, 16 and 20 respectively। सेकंड है हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल्स रेवेन्यू, प्रोडक्ट वाइज सेल्स रेवेन्यू एंड टोटल सेल्स रेवेन्यू क्या है? ₹20 लाख, और हमें डिग्री में वैल्यूज दिया है 360 डिग्रीज इज इक्वल 20 लाख, क्योंकि टोटल सेल्स रेवेन्यू 20 लाख है। और लास्ट में दिया है डिवीजन वाइज परसेंटेज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पहले वाले में एक्चुअल नंबर्स हैं, सेकंड वाले में डिग्री में वैल्यूज दिए हैं, और थर्ड वाले में परसेंटेज वैल्यूज दिया है। ओके और इन जनरल हमारा कभी भी पाई चार्ट में 100% इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ओके तो पहले वाले से नंबर पता चल रहा है 15, 14, 12, 16, 20, दैट इज द नंबर फॉर इंडिविजुअल कंज्यूमर ड्यूरेबल सोल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ लैपटॉप? तो लैपटॉप में टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल 20 लाख है, 630 डिग्रीज का एंगल लैपटॉप का क्या है? लैपटॉप इज इन ग्रीन, सो दैट इज 108 डिग्रीज। तो 36 डिग्रीज विल बी 1/10 यानी 2 लाख हो जाएगा, 200 के हो जाएगा। 108 विल बी 36 इंटू 36 डिग्री इंटू 3, दैट इज 108। 36 डिग्रीज होगा 10%, तो 10% होगा 2 लाख, तो 6 लाख यानी कि 600,000। दिस इज टोटल रेवेन्यू फॉर लैपटॉप्स। और लैपटॉप सेल हुए 12, तो 600K बाई 12 विल बी अवर सेलिंग प्राइस ऑफ वन लैपटॉप, दैट इज 50K। आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछता है जस्ट इन केस, तो फिर उस केस में हमें फिर लास्ट वाला वैल्यू प्रॉफिट भी निकालना पड़ता है लैपटॉप्स के लिए। तो हमारा 100% इज इक्वल टू ₹2.5 लाख, यानी कि 1% हो जाएगा हमारा 2.5K, 2500। और लैपटॉप्स के लिए क्या मेंशन है? 18% है, 18%। तो अगर 1% 2.5K है, 2% हो जाएगा 5K, तो दिस विल बी 45K। 45K का हमें प्रॉफिट हुआ है टोटल 12 में, 45K बाई 12 करोगे तो प्रॉफिट पर लैपटॉप आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, बट जस्ट इन केस निकालना होता। ठीक है, 45K बाई 12 यानी कि 3.9K बाई 12 कितना आ जाएगा? तो 7.5 यानी 3.75K। दिस इज अवर प्रॉफिट ऑन अ लैपटॉप। तो सीपी कॉस्ट प्राइस पूछा होता, कॉस्ट प्राइस हमारा आया था 50 माइनस 3.75, 46.25K। दिस विल बी कॉस्ट प्राइस फॉर वन लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that the marked price of music system was 1.4 times the cost price, so what was the percentage of discount rounded off to the nearest integer offered? मार्क प्राइस हमारा 1.4 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या है? इफ कॉस्ट प्राइस इज 5, मार्क प्राइस इज 7, so what was the percentage of discount offered in case of music system? तो नंबर ऑफ म्यूजिक सिस्टम टोटल आर 16, और म्यूजिक सिस्टम से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है? 43.2, which is basically 36 plus 7.2. So 36 degrees is 2 lakhs 200K, और 7.2 उसका 1/5 है यानी कि प्लस 40K। तो 240,000 is our total revenue from music systems. Number of music systems is 16. ठीक है, that is 16. बट नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। नंबर क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि हमें बेसिकली म्यूजिक सिस्टम्स के लिए परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना है। तो पूरे 16 के लिए भी निकाल लो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे क्योंकि हमें उन्हीं 16 के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट भी गिवन है, तो 100% हमारा 2.5 है, और 16.8% इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ म्यूजिक सिस्टम्स। 16.8% कितना आ जाएगा? 2% विल बी 5 lakhs, तो 16% आ जाएगा हमारा 8 into 5 40, सॉरी 2% इज 5,000, तो 16% आ जाएगा हमारा 40,000, और प्लस 0.8 विल बी 2 मोर, तो 42,000। 240K टोटल, 42K का हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा यहाँ से? 198K। ओके 198K हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और फिर हमारा अकॉर्डिंगली सीपी आ रहा है 198K, एसपी आ रहा है 240K। तो रेशियो ले लो यहाँ पे, रेशियो लेने से चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। रेशियो लेने पे क्या हो रहा है हमारा? 3 से तो जा ही रहा है, तो रेशियो क्या आ रहा है हमारा? 66, 6 से इनफैक्ट जा रहा है, तो 6 से डिवाइड किया अपना, तो 33:40। रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज 33:40। और अगर सीपी हमारा 33 है, रेशियो सीपी और एमपी का है 5:7, तो 5 मिनट्स की वैल्यू 33 है।
मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दो और आसान कर लो। तो लास्ट में हमारा एम आ जाएगा, एम विल बी 7 यूनिट्स, यानी कि 7 इंटू 33। ठीक है, सो एस पी हमारा 240 है और एम आ रहा है 33 इंटू 7, यानी कि 231। एक सेकेंड, 5 इंटू 33 था, ठीक है। 40 इंटू 5 किया, ठीक है, ये भी सही है। और 200 आ रहा था, 240 क्यों लिख दिया यहाँ पे? हाँ 200 होगा, तो 200 आ गया। 231 में हम डिस्काउंट कितना दिया है? तो 231 अगर हमारा एमपी है, 200 हमारा एसपी है रेशियो में, तो हमने डिस्काउंट दिया है 31 का ऑन 231। तो परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगा? 31, 10% हमारा 23.1 होगा, और हमें पहुंचाना है 31 पे। 8 और सब्ट्रैक्ट करना है, तो रफली 8 और सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो रफली 3 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। 3% विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6.9। तो 30% के आस 30 पे पहुंच गई वैल्यू हमारी। 31 करना था, तो रफली 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या ही क्लियर है? ठीक है, चाहते तो 1 यूनिट के भी निकाल सकते थे, बट वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली परसेंटेज ही चाहिए, परसेंटेज यानी कि रेशियो चाहिए। और हमें ऑलरेडी गिवन है कि मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो क्या है? 1.4 है, यानी 5 एंड 7 है। 7 हमारा मार्क प्राइस है, 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of combined selling price of one music system and one washing machine to the combined selling price of one TV, one fridge and one laptop? यानी कि सबका हमें अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे। एनीवे, तो हम ऑलरेडी क्या सेलिंग प्राइस निकाल चुके हैं? हमने निकाला था 50 के, तो लैपटॉप का तो निकाल ही चुके हैं। ठीक है, वैल्यूज सारी की सारी निकाल लेते हैं अल्टीमेटली, जब निकालना ही है वैल्यू। तो 108 डिग्रीज ये आया था हमारा 6,600,000, और दिस इज 75.6 डिग्रीज, तो 72 प्लस 3.6 हो रहा है, 72 डिग्रीज हो जाएगा 400,000, और 3.6 हो जाएगा, दिस विल बी 20,000। ठीक है, 20,000, तो 220,000, 86.4, ये आ जाएगा 72 प्लस 14.4, 72 आ गया 200,000, और फिर 80 के 280 के। ठीक है, यहां से देखो 3.6 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, उसका 4 टाइम्स है। ठीक है, 46.8, दिस इज 36 प्लस 10.8, ब्रेक करो, 36 डिग्रीज है हमारा 200 के, और साथ में 108 डिग्रीज आया था 600 के, तो उसका 1/10 है, यानी कि 60 के, तो 260,000। 43.2 हो गया हमारा, 36 प्लस 7.2, 36 है 200, और फिर 3.6 हो जाएगा 20, तो 240 के। सारी वैल्यूज आ गई, और हमें नंबर्स पता ही है। ठीक है, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग एक आइटम का प्राइस आ जाएगा। तो प्राइस फॉर टीवी विल बी इक्वल टू 280 बाई 15। एक सेकेंड, टीवी का वैल्यू आया था 280 बाई 15। यहाँ पे क्या था? सेलिंग प्राइस था ना, वन म्यूजिक सिस्टम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 86.4, 72 प्लस 14.4, कुछ गड़बड़ किया गया हमने? बिल्कुल गड़बड़ किया है। 72 डिग्रीज था यहाँ पे, तो 72 डिग्रीज के लिए हमें 400 के होगा, 200 के नहीं होगा, 480 है, 420 होगा अकॉर्डिंगली। बाकी सब सही है, ये ठीक है, यहाँ 240 है, हाँ बाकी सब सही है। ठीक है, सो 480 के, 420 के, तो 480 के डिवाइड बाई 15 टीवी का प्राइस आ जाएगा 32,000। फ्रिज का प्राइस, नंबर ऑफ फ्रिजेज आर 14, तो 30 के। लैपटॉप 50 के, म्यूजिक सिस्टम 240 बाई 16, 15 के। वॉशिंग मशीन
260 बाई 20 13 के, तो सारी वैल्यूज आ गई हमारी। क्वेश्चन पूछा रेशियो ऑफ कंबाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन म्यूजिक सिस्टम एंड वन वॉशिंग मशीन, तो म्यूजिक सिस्टम प्लस वॉशिंग मशीन इज 15 + 13 is to TV, fridge and laptop, 32 + 30 + 50, that is 112, 28 is to 112 यानी 1:4, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट फेच्ड सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट पर आइटम, सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट पर आइटम, तो हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, ये सारी की सारी डिग्री में वैल्यूज हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे वैल्यूज हमें गिवन है, ऑल दीज वैल्यूज आर इन परसेंटेज, बट हमें सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट निकालना है कि किस आइटम में हमें सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज नहीं पूछा है, टोटल प्रॉफिट, एब्सोल्यूट प्रॉफिट सबसे ज्यादा किस आइटम पे हुआ है, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है, पर आइटम। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉफिट के शेयर को अल्टीमेटली नंबर ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल सोल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम। तो टीवी के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, 19.2 डिवाइडेड बाय 15, फॉर फ्रिज दिस वैल्यू विल बी 25.2 डिवाइड बाय 14, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रही है वो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये जो हमें परसेंटेज वैल्यू गिवन है इनसे ही कंपेयर कर सकते हैं, डिग्री में दिया होता डिग्री से कंपेयर कर लेते हैं, डिवाइड बाय नंबर क्योंकि पर आइटम चाहिए हमको, और फ्रिज के बाद में लैपटॉप, फॉर लैपटॉप दिस इज 18/12 विच इज एग्जैक्टली 1.5 3/2, ठीक है। तो लैपटॉप के लिए 1.5 है और फ्रिज के लिए वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 आ रहा है क्योंकि 14 × 1.5 होगा 21 से लार्जर वैल्यू है ना कि दिस इज ग्रेटर देन 1.5, टीवी के लिए वैल्यू लेस देन 1.5 आ रहा है। देन फॉर म्यूजिक सिस्टम दिस वैल्यू इज 16.8/16 जो कि 1 के आसपास आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ रहा है। लास्ट वैल्यू फॉर वॉशिंग मशीन दिस इज 20.8/20, ये भी 1 के आसपास का वैल्यू है। तो दो वैल्यूज हमारी बहुत ही क्लोज है फॉर वॉशिंग मशीन एंड म्यूजिक सिस्टम, बट हमसे क्वेश्चन पूछा सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट कहां पे हो रहा है पर आइटम, तो लार्जेस्ट इज फॉर लैपटॉप, सेकंड हाईएस्ट इज फॉर लार्जेस्ट फॉर फ्रिज, क्या हो गया दिमाग को आज, 1.5 से बड़ा वैल्यू लार्जेस्ट हमारा फ्रिज के लिए, सेकंड हाईएस्ट लैपटॉप के लिए, लार्जेस्ट फॉर फ्रिज, सेकंड हाईएस्ट हमारा लैपटॉप के लिए, थर्ड पे वैल्यू आ रहा है फॉर टीवी, और फिर हमें फोर्थ फिफ्थ को चेक करना है, तो सेकंड हाईएस्ट आंसर हमारा लैपटॉप हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। आउट ऑफ दीज टू म्यूजिक सिस्टम एंड वॉशिंग मशीन किसके लिए हमारा रेशियो ज्यादा होगा, किसके लिए कम होगा, तो दोनों में हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली 16.8, ये क्या है 1 + 0.8/16 और यहाँ पे आ रहा है 1 + 0.8/20, तो जब हमारा न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जहाँ पे लार्जर होगा वो वैल्यू स्मॉलर होगी, लेकिन स्मॉलर फॉर वॉशिंग मशीन नंबर 5 एंड नंबर 4 पे दिस विल बी फॉर म्यूजिक सिस्टम। तो अगर ऑर्डर हमें अरेंज करना होता तो मैक्सिमम फॉर फ्रिज, देन फॉर लैपटॉप, देन फॉर टीवी, देन फॉर म्यूजिक सिस्टम एंड फाइनली लास्ट में आ रहा है वॉशिंग मशीन। दिस इज द कंप्लीट ऑर्डर। ओके, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभा परचेज्ड वन ऑफ ईच आइटम एंड गॉट अ 5% डिस्काउंट ऑन द बिल, सो हाउ मच डिड शी पे, तो एक एक हर एक आइटम परचेज किया है, तो ऑलरेडी हमने वैल्यूज निकाला हुआ है, सो 32 + 30 + 50 + 15 + 13, 28 + 112, 28K + 112K यानी कि 140K होता है टोटल बिल, बट 5% का डिस्काउंट हुआ है, तो यानी कि -5% हो जाएगा 7000, तो -7K 133K विल बी आवर आंसर। ओके, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो चीज़ें आसान थी तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया, कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, बट जस्ट इन केस मान लो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होता है और क्वेश्चन पूछा 5% का डिस्काउंट दिया और सारी वैल्यूज हमारी इंटीजर में ही होती, ठीक है, एब्सोल्युटली इंटीजर में आ रही तो अप्रॉक्सीमेट नहीं होता आंसर। अगर आंसर अप्रॉक्सीमेट नहीं होता तो अगर हम 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर 100 रुपीज़ का आइटम है इफेक्टिवली 5 का डिस्काउंट दे रहे हैं, बच रहा है 95 का, ठीक है, 100% है 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, बच रहा है 95%, और 95% इज बेसिकली क्या है 5 × 19, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 19, क्योंकि 19 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से हम कई बार अपने क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं कि उस केस में अगर हमारे पास कैलकुलेशन बहुत टीडियस होता बट एब्सोल्यूट होता, यानी कि अप्रॉक्सीमेट नहीं होता, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट में तो हो सकता है 17 का भी मल्टीपल आ जाए, अप्रॉक्सीमेट में नहीं कह सकते इस बात को, बट अगर एग्जैक्ट वैल्यूज हैं और इंटीजर में वैल्यूज आ रही हैं तो ये बात क्लियर है कि 19 का मल्टीपल होना ही होना चाहिए, पक्का होगा, और 19 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज 1,33,000, बाकी कोई भी ऑप्शन हमारा 19 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन डी ही आंसर हो सकता था और कोई भी इसका आंसर नहीं हो सकता था।
क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो दीज वर द 2 सेट्स जो कि इस सेशन में डिस्कस करने थे। आई बिलीव जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर हिट लाइक बटन एज वेल। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन विल बी डूइंग क्वेश्चंस दैट वर बेस्ड ऑन टेबल एंड बार ग्राफ्स दैट अपीयर्ड इन एसएससी जीपीओ एग्जामिनेशन, और फिर एक गेम बेस्ड सेट भी था, उसको भी डिस्कस करेंगे। इतना ही रखते हैं सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।